Yes, good morning, class. Good morning. Yes, today we will study about the great vessels of the thoracic cavity, body. That is, you already know the aorta, which is supplying whole body with oxygenated blood. Okay, so aorta, you already know aorta is, we study aorta in three headings. That is ascending aorta, arch of aorta, and then descending aorta. Descending aorta we again study as descending thoracic aorta and descending abdominal aorta. Okay. Yes, arch of aorta and descending aorta. Descending aorta again we study as descending thoracic aorta and abdominal aorta. Okay. Today we'll be studying the ascending aorta and the arch of aorta. Now, for your curriculum, that is competence based, two questions are generally asked: the origin, course, relations, tributaries, and termination. See, you already know that we have artery की branches होंगी और veins की tributaries होंगी. You should be very clear about it. Okay. Superior vena cava, azygous, hemiazygous, and accessory hemiazygous. This will be our next topic. But the extent and branches of arch of aorta and descending thoracic aorta. Okay, this is the general question which is going to be asked in your exam. Now, you people are already accustomed with this kind of diagram of the heart. Here we can see, you can very well, sorry. Yes, come in. Here you can very well see the, yes, here you can see this is right atrium, right atrium. Okay, this is ventricle, this is ventricle, left ventricle. Okay, आप लोगों ने हार्ट, you have studied the heart in soft structures, soft parts में you have already gone through the heart. No. Okay, I'll just see it, there will be a separate class for this, but just for a reference I will add few points for that. Okay, so that you can understand. See, this जो व्यू हम अभी देख रहे हैं, this is sternocostal view of the heart. Sternocostal मतलब जो front से हम anteriorly we can see the heart, that is sternocostal surface of the heart. Here on the sternocostal of the heart, it is right atrium we can see and the left ventricle. This is right atrium and this is the left ventricle we can see. From the left ventricle we can see this is the aorta which is arising from the left ventricle, and see this is the, anybody can guess, this is right atrium में क्या चीज ड्रेन करती है? सुपीरियर वेना केवा नहीं, राइट एट्रियम में ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स क्या हैं? सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. ओके, सो दिस इज सुपीरियर वेना केवा. ओके, सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्म बाय एनीबडी? राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, right and left brachiocephalic veins, they unite together to form superior vena cava. Okay, now this is the detailed structure. Here you can see yes, coming back. This is superior vena cava. Here this is the azygous vein which is draining. This is the brachiocephalic, two brachiocephalic veins. This is the right brachiocephalic vein and this is the left brachiocephalic vein. Okay, brachiocephalic vein कैसे बनेगी? Very easy. Yes, coming. बेटा ये तो PMT क्वेश्चंस हैं. These are PMT में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ये तो वो हैं. आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रांचेस, एनीबडी? Left common carotid artery, yes.
लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। सी आर्च ऑफ एओर्टा से जो 2 डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं वो लेफ्ट साइड के लिए निकलती है, और एक ब्रांच निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक विच इज डिवाइडेड इनटू राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड। इज इट क्लियर? कॉमन कैरोटिड जो जाएगी वो हेड एंड नेक एंड ब्रेन के लिए जाएगी, और सबक्लेवियन जो जाएगी वो अपर लिम्ब के लिए जाएगी। Am I clear? So brachiocephalic trunk again is going to form by the union of the 2 veins which are coming from head and neck and upper limb. Head and neck से कौन सी वेन आती है नीचे जो ब्लड कलेक्ट करके ला रही है? इंटरनल जुगुलर वेन। Is it clear? Internal jugular vein which is collecting the blood. Yes, come in. Internal jugular vein which is collecting the blood from head and neck, and the subclavian vein which is collecting the blood from the upper limb. They unite together to form brachiocephalic trunk. Is it clear? Thoracic cavity में great vessels में superior vena cava and yes, come in बच्चे. Superior vena cava, aorta and pulmonary trunk. Okay. They bring blood towards the heart. किसके लिए लेके आएंगे? लंग्स में ले जाने के लिए, टू फॉर ऑक्सीजनेशन। एंड इज इट क्लियर? ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आई थिंक यू पीपल ऑलरेडी नो। ब्लड जो है हार्ट में कलेक्ट होकर लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड देन इट कम्स बैक टू द हार्ट टू गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ओके। हार्ट में जो कलेक्शन है इट इज ऑल इन राइट एट्रियम, देन इट इज पम्प्ड इनटू राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना? राइट वेंट्रिकल से इट इज पम्प्ड थ्रू पल्मोनरी ट्रंक इनटू द lungs. Yes, lungs it come back as in from pulmonary veins and collected in left atrium, then to ventricle, left ventricle, and from left ventricle it is pumped back into the aorta. Okay, you people already know this. I guess this you people already know. Now aorta, I already told you it is an elastic artery. Now you should know at this level that you should start dividing arteries as कि कौन सी आर्टरी इलास्टिक है और कौन सी सॉफ्ट मसल्स की है। इलास्टिक आर्टरी, aorta is the elastic artery, example of an elastic artery. Okay, aorta के parts I have already told you: ascending aorta, arch of aorta, descending aorta, that is again descending thoracic aorta, and abdominal aorta. Okay. Now ascending aorta. Ascending aorta, it originates from the left ventricle. Left ventricle से originate होगी ना aorta. So ascending aorta is very small. It ascends from the left ventricle at the level of inferior border of third costal cartilage. Inferior. See, don't write it. Everything is given in your book. Everything. मैंने कुछ ऐसी चीज यहाँ पर ऐसी नहीं लिखी जो चीज extraordinary मिलेगी आपको। सब कुछ बुक्स में आपके। ट्राई टू कीप मोर इन योर हेड, दिमाग में डिफ्यूज करने की कोशिश करो। ओके। थर्ड इंटरकोस्टल कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। कैन यू एस्टिमेट कि कितना एरिया कितना वो हो गया? ओके। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द second coastal cartilage. Is it clear? Now its length is just 5 centimeter and diameter is 3 centimeter. So you can very well अंदाजा लगा सकते हो कि 3 centimeter diameter है इसका। Okay. Termination, it terminates as arch of aorta. Continue हो जाएगी as arch of aorta. Runs upwards, forwards and to the right. And to the right. ओके। हमारा बॉडी का जो वीनस सिस्टम है वो मेनली राइट साइड पे है, और जो आर्टीरियल सिस्टम है वो मेनली लेफ्ट साइड पे है। ओके। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, सारी वेन्स जो आप पढ़ोगे वो सब लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, क्योंकि हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वहां पर जाना है सबको, है ना। और आर्टीरियल सिस्टम सारा हमारा लेफ्ट साइड पे है। क्यों? क्योंकि एओर्टा या हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप कर रहा है ब्लड। ओके।
तो एओर्टा जो होगा, जब भी आप देखोगे, अगर हम राइट और लेफ्ट में डिवाइड करेंगे तो उसे इट विल बी मोर टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके, और आईबीसी जो होगा वो मोर टुवर्ड्स राइट. नाउ जैसी एओर्टा अराइज होगी, असेंडिंग एओर्टा अराइज होगी, it has aortic sinuses in it, that they are known as sinuses of Valsalva. Sinuses word means, sinus, what do you mean? Small dilatation. ठीक है, sinus word means small dilatation. So aortic sinus is also known as sinuses of Valsalva. Okay, ये three dilatations हो गए. Yes, come in. There are three dilatations, one anterior and two posterior. One anterior and two posterior. Anterior means anterior aortic sinus and posterior means two, means left and right aortic sinuses. Left and right aortic sinuses. Now एक फंडा है एनाटमी में, लेफ्ट वन इज लेफ्ट. पढ़ा है, कहीं और भी पढ़ा होगा ये, पढ़ा होगा 100%. लेफ्ट वन इज लेफ्ट. अम्बलाइकल आर्टरी जब हम पढ़ते हैं तो अम्बलाइकल आर्टरी में ओरिजिन के टाइम पर दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं, बट लेफ्ट वन इज लेफ्ट, यानी राइट डिसअपियर हो जाती है उसकी. यस कमिंग. ओके, लेफ्ट वन इज लेफ्ट, राइट डिसअपियर. सेम हियर, जो यहाँ पर लेफ्ट है वो एओर्टिक साइनस जो है वो कोरोनरी साइनस है. कोरोनरी मतलब कोरोनरी आर्टरी को ओरिजिनेट करेगा वो. और जो राइट साइनस है, पोस्टीरियर राइट साइनस है, वो नॉन कोरोनरी साइनस है. Non-coronary sinus, that means it doesn't give rise to any coronary arteries. In anterior aortic sinus and left posterior aortic sinus, they are giving rise to the two coronary arteries, and right posterior coronary aortic sinus is a non-coronary sinus. This is the question which is asked in your viva कि non-coronary sinus कौन सा है. ठीक है ना? So that is right posterior aortic sinus. Okay. Now, anterior aortic sinus, it gives rise to right coronary artery, इसलिए इसे right coronary sinus भी कहते हैं. Right coronary artery anterior aortic sinus से आती है, that means it is also known as right coronary sinus, which is a viva question again. Okay, left posterior sinus is also known as left coronary sinus because it gives rise to left coronary artery. And right posterior, as I already told you, it is a non-coronary sinus. Now, this is a diagram, transverse section diagram. Here you can see, अगर आप thorax में देख रहे होगे तो जो T4 लेवल है, T4 लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आपने पढ़े होंगे. Yes, T4, ये क्वेश्चन है which is asked in your exam कि T4 लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं. मैक्सिमम चेंजेस राइट से लेफ्ट हो रही है, बहुत सारी चीजें लेफ्ट से राइट हो रही है, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, कोई चीज टर्मिनेट हो रही है, कोई चीज स्टार्ट हो रही है. एनीबडी कैन एनीबडी इन्यूमरेट फ्यू चेंजेस व्हिच आर अकरिंग. ट्रेकिया यहाँ खत्म हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है वो दोनों में. ओके, असेंडिंग एओर्टा अगेन यहाँ खत्म हो जाती है. आर्च ऑफ एओर्टा शुरू भी हो जाती है और खत्म भी हो जाती है. डिसेंडिंग एओर्टा शुरू हो जाती है. ओके, समझ आ रहा है? ठीक है. ईसोफेगस यहाँ पर टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है. T4 की लेवल से वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती है लेफ्ट पर. क्यों आना है उसे लेफ्ट? चमक है ना लेफ्ट में. ओके, समझ आ रही है मेरी बात? नाउ एओर्टा के रिलेशंस एंटीरियरली वी हैव, देखो असेंडिंग एओर्टा जो होता है इट इज एनक्लोज विद फाइब्रस पेरिकार्डियम. हार्ट को जो एनक्लोज करता है दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. यस कम इन. फाइब्रस पेरिकार्डियम. ओके, तो हार्ट असेंडिंग एओर्टा को भी पेरिकार्डियम, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो एनक्लोज करता है. जो आर्च ऑफ एओर्टा है वहां पर वो मिंगल हो जाता है उसके साथ ही. इसकी इंपॉर्टेंस है, is this carries an importance, that's why I'm especially emphasizing on this point. The fibrous pericardium of the heart, it also encloses the ascending part of the aorta and it merges with the arch of aorta. Okay, it is not carry forward there.
इनफंडिबुलम, एनीबडी कैन यू? देखो कुछ टर्म्स है जो मेडिकल टर्म्स हैं जो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब भी वो वहां रखी जाएगी तो उसका मतलब अगर आपको पता होगा तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. इनफंडिबुलम, एनीबडी? इनफंडिबुलम मीन्स कहीं से देखो जब स्टार्ट हो रही होती है कोई चीज तो एक डायलिटेशन जैसी चीज होती है वहां पर. घर में पाइप लगाते हो वहां पे भी देखा है ना, डायलिटेशन होती है स्टार्टिंग में, दैट इज इनफंडिबुलम. तो पल्मोनरी आर्टरी जब स्टार्ट हो रही होती है राइट वेंट्रिकल से तो वहां पर इनफंडिबुलम, ओके, इनफंडिबुलम ऑफ पल्मोनरी ट्रंक. इज इट क्लियर? तो जहां दैट मीन्स इट इज द जंक्शन फ्रॉम वेयर राइट वेंट्रिकल इज कंटिन्यूइंग अपवर्ड्स एज पल्मोनरी ट्रंक. ओके, द रिलेशंस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कहा है कि इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप ये बात याद रखो कि राइट साइड जो होती है हमारी बॉडी की उसमें हमारी वीनस चैनल्स ज्यादा हैं, यानी राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर, ये सब चीजें आप राइट साइड में पढ़ोगे. और लेफ्ट साइड में हमारी आर्टीरियल चीजें ज्यादा होंगी, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ओके, पल्मोनरी आर्टरी. ब्रांचेस असेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस मैंने बताया दो ही हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ओनली 2 ब्रांचेस. कोरोनरी आर्टरी का मतलब हार्ट को जो सप्लाई करेगी, ठीक है. दीज आर बेसिकली वेसल्स फॉर द हार्ट, सब टू सप्लाई द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट. नाउ असेंडिंग एओर्टा टू सम अप, बिगनिंग जो होगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, टर्मिनेशन as arch of aorta at the level of superior border of second costal cartilage. 3 aortic sinuses we have and 2 branches we have. Okay, arch of aorta. arch of aorta में क्वेश्चन जो आता है आपको, एक तो उसकी ब्रांचेस पे आता है एंड नंबर 2 रिलेशंस. इसकी 5 रिलेशंस है. देखो ये T4 की लेवल पे स्टार्ट हो रहा है और T4 की लेवल पे ही खत्म हो रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? एंटीरियर से पोस्टीरियर, एंटीरियर से पोस्टीरियर. समझ में आ रहा है? ट्रांसवर्स पड़ा है हमारे ऐसे, ओके, एंटीरियर से पोस्टीरियर. तो कोई चीज जब ऐसे जा रही है, राइट से लेफ्ट भी जा रही है, तो ये ऐसे हो गई ना, यू गेट इट? तो जो रिलेशन होंगे हमारे वो लेफ्ट और एंटीरियर होंगे या राइट और पोस्टीरियर होंगे. ये ऐसे है हमारी बॉडी. तो यहाँ लेफ्ट और एंटीरियर है और पीछे राइट और पोस्टीरियर है. एम आई क्लियर? ठीक है. तो रिलेशंस होंगे एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट. लेफ्ट साइड में हमारा क्या पड़ा हुआ है? लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट प्लूरा. ठीक है. लेफ्ट नर्व्स है, थोरैक्स में कौन सी नर्व्स आप पढ़ते हो? स्प्लेनिक नर्व, वैगस नर्व, इंटरकोस्टल नर्व तो बेटा उसमें है, स्पेसेस में, आपकी अंदर कैविटी में नहीं है, ये वॉल में है. इंटरकोस्टल नर्व्स को आप रिलेशन में यहाँ नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि वो बॉडी वॉल में है, कैविटी के अंदर नहीं है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैविटी. ठीक है. आप अपने दिमाग में 3D इमेज क्रिएट करने की कोशिश करो. तो जो थोरैसिक बॉडी वॉल के अंदर है वो रिलेशन में नहीं आ सकता कैविटी में. ये फ्रेनिक नर्व एंड वेगस नर्व जो है ये कैविटी के अंदर है हमारे. उसके अलावा हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स आती हैं. ओके. Now this is the diagram which is commonly drawn in the exam. 5 relations on each side: superior, inferior, anterior and left, posterior and right. 5 फंडा है इसका 5 का. जो सुपीरियर में 4 लिखी है ना उसमें 5वां वर्टिब्रल कॉलम है. ओके. सुपीरियर हैज लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड 3 ब्रांचेस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा. आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस होती हैं: ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन. ओके. एंड 1 वेन दैट इज लेफ्ट सब ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ओके. दीज आर द सुपीरियर रिलेशंस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा. इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट. लेफ्ट साइड पे क्या होगा हमारा? लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरा, लेफ्ट वेगस नर्व, सर्वाइकल नर्व,
and left intercostal vein, superior intercostal vein. Okay, posterior end to the right, trachea, esophagus, left recurrent laryngeal nerve, thoracic duct and vertebrae. Inferiorly we have pulmonary trunk, left principal bronchus, ligamentum arteriosum, left recurrent laryngeal nerve and superficial cardiac plexus. तो कोई निमोनिक ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है ना? निमोनिक्स की तो आदत पड़ गई होगी अब तक तो नहीं पड़ी। अरे बच्चों निमोनिक्स बनाओ, बिल्कुल ऐसे याद नहीं रहेंगी चीजें, बाद में फिर ये बात याद करना कि निमोनिक्स में हमने कौन सा कहाँ अप्लाई किया था। फिलहाल तो यही बनाओ लर्न करने के लिए। ओके, this is the diagram which is commonly drawn in the exam to explain the relations of the arch of aorta. Okay, branches I have already told you arch of aorta ki. This is just to summarize the beginning, termination, branches, and I'll tell you अभी clinical part जो है ना इसका I'll tell you अभी. This here you can see the chest X-ray जब हम देखते हैं, ये जो चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं ये पीए व्यू है, आप एपी व्यू भी देखोगे। पीए का मतलब पी पहले वर्ड यूज किया हमने, ए बाद में यूज किया, यानी हमारी एक्सरेज जो है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर जा रही है। ओके, तो ये पोस्टीरो एंटीरियर व्यू है, पीए व्यू है। इसके अंदर अगर आप देखो रेड कलर की लाइन से जो दिख रहा है, सॉरी ये रेड कलर की लाइन से जो दिख रहा है ये, दिस इज नोन एज एओटिक नकल। एओटिक नकल that is nothing else but arch of aorta। आगे से पीछे जो aorta जाता है और जब एक्सरे पे देखते हैं हम उसे, तो it is seen as aortic knuckle। Okay, this is known as aortic knuckle। This is the left border of the heart, this is the left border of the heart, and this is the right border of the heart। Okay, and this is the inferior border of the heart। ठीक है, this is cardiac, बीच में cardiac shadow है और ये दोनों lungs है, ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं दोनों lungs है और बीच में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है this is हार्ट, कार्डियक शैडो बोलते हैं इसको। ओके, नाउ एक चीज हम पढ़ते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस, कुछ जानकारी है किसी को इसके बारे में? डक्टस आर्टेरियोसिस, एनीबॉडी? एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा डक्टस आर्टेरियोसिस, यहाँ नहीं पहले भी पढ़ा होगा। शंटिंग होती है ब्लड की। क्यों होती है शंटिंग? क्योंकि फीटस के अंदर लंग्स नहीं काम करे ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है, तो हमें ब्लड को राइट से शंट करके डायरेक्टली लेफ्ट की तरफ ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो राइट से जब हम शंट करते हैं ब्लड को डायरेक्टली, तो यानी कि ब्लड राइट साइड में कहाँ से आएगा? पल्मोनरी ट्रंक से, और लेफ्ट साइड में जाने के लिए हमें ब्लड को कहाँ डालना पड़ेगा? एओर्टा में। समझ में आ रही मेरी बात? राइट साइड से हमारे पास ब्लड जो आ रहा है वो पल्मोनरी ट्रंक से आ रहा है, वहां से जाएगा ना लंग्स में, तो हमें उससे पहले ही उसे शंट करना है ब्लड को, और हमें कहाँ डालना है? उसे एओर्टा में डालना है। ओके, तो ये बेसिकली एक शंट चैनल है विच इज बिटवीन दी एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है इसका कनेक्शन जो होता है वो प्री डक्टल भी हो सकता है और पोस्ट डक्टल स्टेनोसिस। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है हमें, कैन यू सी? दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस इज दी here, this is the ductus arteriosus here, this is ductus arteriosus। तो ductus arteriosus जहाँ यूनाइट करता है आर्च ऑफ एओर्टा को, ठीक है, इसके पहले कई बार स्टेनोसिस हो जाती है या इसके बाद होती है कई बार, यानी प्री डक्टल हो सकती है या पोस्ट डक्टल स्टेनोसिस हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट आप एक रीजन समझ सकते हो ये कि ओवर एब्जॉर्प्शन, कोई चीज ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी तो that causes stenosis। okay, here, so this is known as pre-ductal coarctation of aorta। यहाँ पे देखो, यहाँ stenosis होगी ना, duct बाद में ये अटैच बाद में हो रहा है, उसके पहले ही stenosis है, that is pre-ductal coarctation of aorta। and here post-ductal coarctation of aorta। जनरली क्या होगा, फीटस के अंदर ये डक्टस आर्टेरियोसिस फंक्शनल होता है, बट इन जैसे बेबी बॉर्न होता है 4 to 12 वीक्स में ये बंद हो जाता है। ठीक है,
it completely collapses and it continues in our body as ligamentum arteriosum. Ductus arteriosum के बाद ये हो जाता है ligamentum arteriosum. But sometimes it remains patent in adults also, and then it is known as patent ductus arteriosus. ठीक है, कई बार ये फंक्शनल होता है एडल्ट में भी, एंड देन इट इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ओके, जहां ये कनेक्टेड होता है वहां पर ये कई बार स्टेनोसिस कॉज करता है. तो प्री डक्टल स्टेनोसिस कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा भी हो सकती है, और पोस्ट डक्टल. क्या होगा इसकी वजह से? कोऑक्टेशन हो रहा है. कोऑक्टेशन का मतलब स्टेनोसिस हो रही है, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ना. अगर हम आर्टरी को सप्लाई नहीं कर रहे प्रॉपरली, ब्लड नहीं दे रहे, एओर्टा तो सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा है ना सबको, तो अगर सप्लाई नहीं होगी तो इस्चेमिक सिम्टम्स डेवलप होंगे लोअर लिम, स्पेशली लोअर लिम एंड एब्डोमेन में. अपर पार्ट ऑफ बॉडी में क्यों नहीं डेवलप होंगे? क्योंकि तीनों ब्रांचेस तो गई ऊपर के लिए. कैन यू सी दिस कि तीनों ब्रांचेस जो एओर्टा की थी वो तो चली गई ना पहले ही. ये एओर्टा में डिसेंडिंग एओर्टा में स्टार्ट हुआ, तो जो भी फीचर्स होंगे वो हमारे एब्डोमेन और लोअर लिम्स के लिए डेवलप होंगे. ओके, नाउ this I have already told you. Okay, coarctation of aorta. कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है नॉचिंग ऑफ रिब्स, क्योंकि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं. पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे गेट एनलार्ज. कहाँ रन करती हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज? रिब्स पढ़े ना आपने. रिब्स के लोअर बॉर्डर को पर वैस्कुलर बंडल रन करता है, क्या बोलते हैं उसको? वैन, है ना, रन करता है ना लोअर बॉर्डर पे. तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी वहां रन कर रही है, और जब वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी तो क्या होगा? रिब्स जो होंगे उनकी नॉचिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है, बोन्स आर बीइंग इरोडेड बाय दैट एंड दैट कॉजेज नॉचिंग ऑफ द रिब्स. ओके, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 4 to 12 वीक्स पे ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, बट इट कैन रिमेन फंक्शन, देन इट इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. नाउ एओर्टिक आर्च एन्यूरिज्म, ये लोकलाइज्ड डायलिटेशन है एओर्टा की. मेनी इन्फेक्शंस, मेनी कॉजेज, आई मीन there are multiple list of causes which can cause aortic aneurysm. Aneurysm word means dilatation. वॉल जो थी वो वीक होके डायलेट होगी. ओके, the wall of the aorta is weak and then it gets dilated, and when it gets dilated it causes pressure effects. जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं उन पर प्रेशर इफेक्ट्स होंगे. ट्रेकिया भी पड़ी है वहां पर. ओके, समझ आ रही मेरी बात? तो दैट कॉजेज mediastinal compression syndrome. Mediastinal compression syndrome. Okay, descending thoracic aorta we'll study in separate class. Now wait, we'll start with coronary circulation. कोरोनरी आर्टरीज का कोर्स, ओरिजिन, ब्रांचेस एंड इस्चेमिक हार्ट डिजीज का एनाटॉमिकल बेसिस, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में. ठीक है, अगेन द सेम डायग्राम, बट हियर वी आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन द ब्रांचेस. ठीक है, देखो मैंने कहा दो आर्टरीज अराइज होती है हमारी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. तो राइट कोरोनरी आर्टरी इट अराइजेस फ्रॉम एंटीरियर एओर्टिक साइनस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंटीरियर एओर्टिक साइनस से हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी अराइजेस. दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, ये दिख रही है हमारी, ये राइट कोरोनरी आर्टरी. हियर दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी. Right coronary artery which is arising from the anterior aortic sinus. Okay, it passes in between right auricle, you people already know. अच्छा, हार्ट नहीं हुआ अभी. राइट auricle and infundibulum of the pulmonary trunk के बीच में ये अपीयर हो रही है यहाँ पर. Here it appears here. Can you see the origin here? ये pulmonary trunk है हमारा और ये हमारा auricle है, इसके बीच में ये अपीयर हो रही है on the surface of the heart. Here it arises here and it runs in the this is atrioventricular groove.
क्या कहते हैं हम इसे, कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं हम इसे, और AV ग्रूव, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ओके, ठीक है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ओके, दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, उसमें रन कर रही है ये। सबसे पहली ब्रांच ये कौन सी देगी, राइट कोनस आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी इज गिविंग राइज टू राइट कोनस आर्टरी, हियर दिस इज द राइट कोनस आर्टरी। ये राइट कोनस आर्टरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी लेफ्ट कोनस आर्टरी देगी, और ये कोनस आर्टरीज जो दोनों होंगी ये इनफंडिबुलम पे, पल्मोनरी इनफंडिबुलम पे आपस में एनास्मोज करके एक रिंग बना लेंगी, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दैट वे। नाउ इट रन्स इन दी, here it runs in the AV sulcus और coronary sulcus here। now ये यहाँ से आई, यहाँ पर inferior border पे ये wind round कर गई नीचे, inferior on the diaphragmatic surface of the heart, ठीक है, it wind rounds on the diaphragmatic surface of the heart and here it ends up, okay। ऑपोजिट साइड से हमारी आएगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, और उसके साथ ये एनास्मोसिस बनाएगी यहाँ पे। कोरोनरी आर्टरीज दे आर नॉट एंड आर्टरीज, दे आर नॉट एंड आर्टरीज बट दे बिहेव लाइक एंड आर्टरीज। व्हाट डू यू मीन बाय एंड आर्टरीज? पहले 20 पन्ने कनिंगम के नहीं पढ़े लगता है ढंग से। व्हाट आर एंड आर्टरीज? क्यों हमें पता होना चाहिए बॉडी में कि यहाँ ये एंड आर्टरी है? ब्रेन में हमारे एंड आर्टरीज हैं, रेटिना में हमारे एंड आर्टरीज हैं। क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इस बात की? एंड आर्टरीज का मतलब है जहां वो एंड हो रही है वहां पे एनास्मोसिस नहीं है, यानी वो जिस एरिया को सप्लाई कर रही है, जब वो उनके अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो वो एरिया इन्फाक्ट होगा, सीधा डैमेज होगा वो। यू गेट इट? इसीलिए एंड आर्टरीज हमारी बॉडी में जहां जहां है हमें वो बॉडीज के लाइन डाउन करने होते हैं वो पार्ट, ओके। क्योंकि इसका मतलब अगर हमारी आर्टरी डैमेज हो या हमारी वैस्कुलर सप्लाई कभी डैमेज होगी तो जहां जहां एंड आर्टरीज होंगी वहां जो डैमेज होगा वो परमानेंट डैमेज होगा, वी कांट रिवाइव बैक, ओके। तो हमारे को इसलिए पता होना चाहिए कि एंड आर्टरीज कहाँ कहाँ हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज दे आर नॉट एंड आर्टरीज बट yes they behave like end arteries. Is it clear? See, those who are not interested in studying, I can see those people here, they can kindly leave the class, I don't mind, and if you are here for attendance I'll give you that. बिल्कुल I don't mind that. आप लोगों को नहीं पढ़ना, आई डोंट, बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट चाहिए ही नहीं। आप लोग आराम से जाओ, अटेंडेंस चाहिए आपको, वो मिल जाएगी आपको, बट डोंट डिस्टर्ब मी। नाउ दिस here it winds round on the inferior border of the heart and यहाँ से ये diaphragmatic surface पर आ गई हार्ट के, ओके। heart supplied by 2 coronary arteries, right and left. only जो इनर मोस्ट हमारा 75 माइक्रोन का एरिया जो है वो जो हार्ट के अंदर ब्लड है डायरेक्ट वो सप्लाई कर देता है ऑक्सीजन उसको, यानी जो एंडोथीलियम पार्ट है हार्ट में, आप पढ़ते हो ना लाइनिंग, पेरिकार्डियम, मायोमेट्रियम एंड देन अंदर एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम का भी जो फर्स्ट 75 माइक्रोन्स है वही सप्लाई होता है डायरेक्टली जो ब्लड पड़ा हुआ है हार्ट के अंदर उससे। बाकी का जो है वो कोरोनरी आर्टरीज ही सप्लाई करती है। इज इट क्लियर नाउ? Features of coronary arteries, which is a viva question which is asked. They arise from ascending aorta, और कहाँ से arise हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। They are vasa vasorum of the aorta. They are functional end arteries. मैंने कहा ना, they are not end arteries but they behave like end arteries. That means they are functionally they are end arteries. Okay. They receive blood during
वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जनरल हमारा ये मानना होता है कि सिस्टली जब होती है तब ब्लड फ्लो होता है हार्ट से और तभी हमारे को सप्लाई होता है, बट हार्ट इटसेल्फ गेट ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग डायस्टली ओनली। ओके, वेंट्रिकुलर डायस्टली के अंदर ही कोरोनरी आर्टरीज के अंदर सप्लाई जाती है। ये कॉमन, सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि वो बोलते हैं सिस्टली के अंदर जाती है हार्ट को सप्लाई, नो, डायस्टली के अंदर जाती है। दिस ओके, दे आर प्रोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब एग्जामिनर किसी बात को स्पेशली ले डाउन करके पूछता है ना, एम्फसाइज करके, तो समझ जाओ उसके अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर है। ठीक है ना? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि सप्लाई जो होती है वो सिस्टली में होती है या डायस्टली में, ठीक है, तो हमेशा आपके अलर्ट जो है ना स्टार्ट हो जाना चाहिए ब्रेन में, क्योंकि अगर वो एम्फोसिस दे रहा है इसका मतलब कोई ट्विस्ट जरूर है वहां पर। नाउ दे आर प्रोन टू एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस इज द ट्रांसवर्स sagittal व्यू। हियर यू कैन सी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाने के लिए जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड ओपनिंग, है ना? और जो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है वो कौन सी ओपनिंग है? बाइकस्पिड ओपनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड? राइट साइड पे हमारे पास 3 कस्प हैं और वहां हमारे पास 2 कस्प हैं। ओके, तो ये जो 3 कस्प दिखाई दे रहे हैं हमें हियर, कैन यू सी? दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज सेप्टल कस्प। दैट मीन्स दिस इज राइट एवी ओपनिंग, है ना? ये लेफ्ट हो गई, इसके अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके, 2 कस्प। एंड ये जो दिख रहे हैं हमें, ये दोनों ये क्या होंगे? सेमील्यूनर कस्प है। तो क्या होगा? ये हेओटा और आगे पल्मोनरी ट्रंक। समझ आ गया ना? यू गेट माई पॉइंट? ये आगे जो दिख रहा है ये हमें एओटा दिख रहा है, ये एओटा दिख रहा है और ये पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है हमें। ओके, नहीं, राइट कोरोनरी आर्टरी ऑलरेडी मैं बात बोल चुकी, साइनस ऑफ द, कहाँ से? एंटीरियर एओटिक साइनस, ठीक है ना, वहां से अराइज हो रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी स्मॉलर देन दी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये ट्रांसवर्स डायग्राम ड्रॉ किया है ये बताने, आर्टरी का कोर्स दिखाने के लिए आपको, ठीक है? सी हियर, see this is the anterior aortic artery which is arising here. This is anterior, this is the right coronary artery. राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये सर्कल डाउन करके पूरा नीचे आएगी और ये यहाँ पर एनास्मोस करे ये इससे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ दी पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी। इसके पहले ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे रही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे रही है, ठीक है ना? इट रन्स इन दी इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो ग्रूव है उसमें ये रन कर रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। दिस इज इम्पोर्टेंट हेयर बिकॉज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसकी भी ब्रांच होगी, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से आ रही है, अराइज हो रही है, तो राइट कोरोनरी डोमिनेंस बोलते हैं हम। और अगर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इज अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दैट मीन्स इट हैज लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस। समझ में आ गई मेरी बात? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसकी भी ब्रांच होती है हार्ट में उसी की डोमिनेंस होती है। अगर इफ इट इज अराइजिंग, जनरली 90% केसेस में इट अराइजेस फ्रॉम दी राइट कोरोनरी आर्टरी, इसलिए राइट कोरोनरी डोमिनेंस ही रहती है, ठीक है? बट इन 10% ऑफ इंडिविजुअल्स इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम दी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस होती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यू विल गेट टू नो स्लोली। ओके, बट डोमिनेंस जो है वो डिसाइड होती है इस बात से कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है। ओके, now these are the dilatations here where we can see the two arteries, right coronary artery and left coronary artery, they are arising. Okay, the right coronary artery, it is divided into 2 segments, एक जो sternocostal surface पे है और जो diaphragmatic surface पे है।
स्टर्नोकोस्टल सरफेस पे इसकी दो ब्रांचेस मैंने आपको बोला जो आपको याद रखनी है मेन, दैट इज राइट कोनस आर्टरी, ओके, राइट कोनस आर्टरी, ओके, एंड दूसरी ब्रांच जो है उसके अलावा ये एट्रियल ब्रांचेस, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस सब देगी। उसके अलावा राइट SA आर्टरी, साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी, साइनो एट्रियल ऐसे नोड पढ़ा है ना आप लोगों ने, ऐसे नोड होता है ना, AV नोड, ऐसे नोड, ऐसे नोड को जो आर्टरियल ब्रांचेस जाती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से जाती है, ऐसे नोडल आर्टरी, ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए दो मेन ब्रांचेस जो आपको याद रखनी है, नोडल आर्टरी एंड कोनस आर्टरी, ओके। उसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस दे रही है, वाइंड राउंड करके लोअर बॉर्डर से नीचे डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे आ रही है। वहां जो इंपॉर्टेंट ब्रांच आपको याद रखनी है वो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ओके। It ends by anasmosing with the circumflex branch of the posterior coronary, left coronary artery, okay. Area of distribution, ये पूछेंगे आपसे वाइवा में, what is the area of distribution of right coronary artery and what is the area of distribution of the left coronary artery, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी का जो एरिया है वो राइट साइड का, मेनली राइट साइड का है सारा, राइट एट्रियम। अब एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, राइट एट्रियम, उसके अलावा राइट वेंट्रिकल, एक्सेप्ट अ स्मॉल पार्ट एडजेसेंट टू एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के पास जो एरिया है दैट इज नॉट सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। अब जो जो यहाँ एक्सेप्शन है वो वहां एरिया में आ जाएगा, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल जो इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में के पास था, ठीक है, तो वहां पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के पास होगा, बट ये एरिया जो होगा वो राइट के पास है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पोस्टीरियर 1/3। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज वन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इस्चेमिक हार्ट डिजीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो पोस्टीरियर 1/3 को वो सप्लाई करती है और एंटीरियर 1/3 ऑफ द सेप्टम इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट लेफ्ट पंडल ब्रांच, पूरा जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो राइट से सप्लाई होता है, सिर्फ लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है दैट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपसे वाइवा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम। मैंने इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आपको बता दी, आपको वो याद, उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप याद रख सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और नहीं रख सकते तो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस तो कम से कम जरूर याद रखिए। मैंने इंपॉर्टेंट बताया, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना बहुत जरूरी है वो। ना वो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, नोडल जो कोनस आर्टरी जो इनफंडिबुलम पे दोनों की तरफ से आ रही थी, लेफ्ट कोनस आर्टरी और राइट कोनस आर्टरी जो कि पल्मोनरी ट्रंक के इनफंडिबुलम पे एनास्मोज कर रही थी, दैट फॉर्म्स एन्युलस ऑफ व्यूसेंस, एन्युलस ऑफ व्यूसेंस। ये आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, एन्युलस ऑफ व्यूसेंस। कभी कभी थर्ड कोरोनरी आर्टरी भी अराइज हो जाती है। अगर राइट कोनस आर्टरी कई बार अगर उससे राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज नहीं हो रही होती तो राइट कोनस आर्टरी डायरेक्टली अराइज हो जाती है, ठीक है, तो दैट इज थर्ड कोरोनरी आर्टरी। यानी कि ये कहाँ से अराइज होगी, जो हमारा नॉन कोरोनरी साइनस है वहां से, ओके। एन्युलस ऑफ व्यूसेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज एन्युलस ऑफ व्यूसेंस, ठीक है ना। नाउ ऐसे नोडल आर्टरी मैंने कहा कि 65% इंडिविजुअल्स में राइट से आती है, बट 35% में ये सर्कमफ्लेक्स से भी आ जाती है। नाउ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहां से अराइज होगी, लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस। सी यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, ठीक है ना। लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज हुई है, और जैसे हमने पढ़ा था ना वहां पे कि राइट ऑरिकल और इनफंडिबुलम के बीच में एंटर करिए, ये लेफ्ट ऑरिकल और इनफंडिबुलम के बीच में एंटर करिए, इट इज सेम, ठीक है। तो ये लेफ्ट ऑरिकल और इनफंडिबुलम के बीच में कर रही है रन, और इसके बाद इमीडिएटली ये डिवाइड हो जाती है दो में, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD,
लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दो में इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है ये। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को कई बार हम लोग एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोलते हैं, मतलब एनाटॉमी में जब आप पढ़ोगे ना इसे, तो हम इसे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोलते हैं। बट अगर आप जब क्लिनिकल उसमें जाओगे पोस्टिंग्स में, तो इसको इसी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को ही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं, LAD। और सब क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज होते हैं वो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस से बनते हैं, LAD, लैड बोलते हैं उसको। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एक हमने अभी पढ़ी थी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ओके, नाउ एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, मैंने कहा था जो जो वहाँ एक्सेप्शंस है वो यहाँ सब कुछ है। पूरा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा यहाँ पर है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का कौन सा एरिया? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो था उसके एसोसिएटेड एरिया राइट कर रही थी, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। राइट वेंट्रिकल का कौन सा एरिया जो एडजॉइनिंग था एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के, वो इसके पास आ गया। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एंटीरियर 2/3, ठीक है। और लेफ्ट बंडल ब्रांच, क्योंकि बाकी तो सारा कंडक्टिव सिस्टम राइट कर रही है सप्लाई, इसका लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो सप्लाई होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। मैंने कहा ना एक का याद रखोगे दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो वहां एक्सेप्शन है वो यहाँ पर है। ओके, दिस इज जस्ट टू समराइज द थिंग। एंटीरियर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है इट अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, it has a short trunk, divides into two branches, anterior interventricular and left circumflex artery. It runs in anterior interventricular groove. Branches सब बोल सकते हो, एट्रियल ब्रांचेस होती हैं, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती हैं, एवरी जो मेन ब्रांचेस आपको बोली हैं वो है कोनस आर्टरीज में, ठीक है। लेफ्ट कोनस आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो होती है ये एवी ग्रूव में अगेन रन करेगी वेंट्रिकुलर एट्रियल ब्रांचेस। एट्रियल ब्रांचेस को इसको फुगेल्स आर्टरी भी बोलते हैं। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, एज अ टीचर आई विल से डोंट गो फॉर वेरी फैंसी वर्ड्स, डोंट गो फॉर वेरी फैंसी वर्ड्स, क्योंकि ये आप अपने लिए सेल्फ ट्रैप क्रिएट करते हो। क्योंकि आपके जो एग्जामिनर्स आते हैं ना वो सब बुड्ढे बुड्ढे होते हैं, वो लोग को बहुत फैंसी नेम्स बहुत अच्छे नहीं लगते उन्हें। आप जब उनके लिए को फैंसी नेम बोलते हो ना तो वो आप अपने लिए ट्रैप क्रिएट कर देते हो, फिर वो उधेड़ते हैं आपको बैठ के, ठीक है ना। इसलिए कभी भी टीचर के आगे ना इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है। दो फैंसी नेम लोगे ना, चार वो ले गया तुम्हारे इसको, तो बैठ के तुम्हारी अच्छे से उधेड़ेगा। इसे ट्राई टू बी सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। जितना बेसिक में बात करोगे उतनी बेसिक में वो तुमसे बात करेगा। तुम अगर फैंसी की तरफ जाओगे तो वो जब जाएगा ना फैंसी की तरफ बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ा देगा तुम्हें, ठीक है। कार्डिक डोमिनेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कार्डिक डोमिनेंस किससे डिसाइड होती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। जनरली राइट कार्डिक डोमिनेंस होती है, बट 10% इंडिविजुअल्स में लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस भी होती है, और बैलेंस होती है, यानी कि दोनों से आ रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्या फर्क होगा दोनों में? टर्म्स के ऊपर जाओ, देखो रटो मत, टर्म्स को समझो। एंजाइना का मतलब क्या हुआ? पेन, ठीक है ना। और इन्फॉक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फॉक्ट मतलब क्या होता है? ब्लड सप्लाई अगर किसी एरिया की कमी हुई तो वहां पर इन्फॉक्ट हो जाएगा। वो इन्फॉक्ट मतलब वहां की वैस्कुलर सप्लाई जब हैम्पर होगी तो नेक्रोसिस सेट इन हो जाएगी, ठीक है। अब इन्फॉक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? रिपेयरिंग होगी। तो रिपेयरिंग किससे करती है बॉडी? चोट लगी नहीं है तुम लोगों को कभी? किससे रिपेयर होती है तुम्हारी चोट? सेम टिश्यू से तो रिपेयर नहीं होती ना, फाइब्रोसिस होती है वहां पे। यू गेट माई पॉइंट? तो यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले तो एंजाइना हुआ, यानी पेन, ठीक है। बट वो पेन इतना नहीं था, मतलब अगर शुरू है तो वो एंजाइना ही बोलेंगे हम उसे। जब वो पेन सस्टेन करेगा, इतनी देर तक रहेगा कि वो टिश्यू जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाए, दैट इज इन्फॉक्ट, ओके।
और जब वो इन्फॉक्शन इतनी देर तक स्टैंड करेगा कि वो टिश्यू जो है खत्म होने लग जाए, बिल्कुल डेड हो जाए, दैट इज नेक्रोसिस। ठीक है। और जब नेक्रोसिस के बाद भी पेशेंट अगर बच गया तो क्या होगा, वो रिपेयर होगा टिश्यू एज फाइब्रोसिस। समझ में आ गई स्टेजेस? ठीक है। पेन एंजाइना का बड़ा वर्ल्ड सेट है, कहाँ कहाँ होता है? प्रीकॉर्डियल यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, ये जॉ तक जा सकता है ऊपर, नेक और जॉ। मीडियल साइड ऑफ आर्म, फोर आर्म, ठीक है ना, रिस्ट। इसके अलावा स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, सर्दियों में भी वो कहेगा पसीना पसीना हो गया मैं तो। ठीक है। टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा होगा, स्वेटिंग होगी उसको बहुत ज्यादा। ठीक। दिस इज द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेन। ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमन है। ठीक है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लाग बन गए दोनों तरफ, तो सप्लाई जो होगी वो एम्पर हो गई। समझ में आ रही है बात? ये प्लाग बन गया दोनों तरफ से। ठीक है। तो बीच में जो है सप्लाई डैमेज हो गई, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया फ्लो में। इसमें क्या करते हैं हम लोग? दो एंजाइना पेक्टोरिस समझ में आ गया सबको? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस समझ में आ गया सबको? ये आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोमेटस प्लेग्स बन गए हमारे। किसके बनते हैं ये प्लेग्स? कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा भी कैल्सिफिकेशन भी हो जाते हैं, इसमें कैल्शियम भी होता है। और कौन से लेयर में होंगे ये? आर्टरी के कौन से लेयर में होंगे? इंटिमा, मीडिया, पढ़ा है ना? एक्सटर्ना, 3 लेयर्स होते हैं ना आर्टरी के, इंटिमा, मीडिया और एक्सटर्ना। तो ये कौन से लेयर में बनता है एथेरोमेटस प्लेग? इंटिमा में बनेगा तो बह जाएगा वो तो। मीडिया, ऑब्वियस उसके ऊपर कवरिंग होनी चाहिए ना, तभी तो वो रुकेगा वहीं पर। ओके, इट फॉर्म्स इन दी ट्यूनिका मीडिया लेयर। ओके, नाउ इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इसे कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। मैंने बताया ना स्टेजेस, सबसे पहले एंजाइना। एंजाइना भी 2 होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल एंजाइना का मतलब कि जब पेशेंट स्ट्रेन कर रहा है, वॉक कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तब उसे पेन उठता है, दैट इज स्टेबल एंजाइना, यानी ओनली ऑन एक्सर्शन। पेन ऑफ एंजाइना ओनली ऑन एक्सर्शन। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है वो रेस्ट में बैठा हुआ है खाली, तो भी उसको पेन हो रहा है, दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। यानी कि स्टेबल एंजाइना का मतलब क्या हुआ? जब पेशेंट एक्सर्ट कर रहा है, ब्लड सप्लाई की जरूरत है उसे, तब वो सप्लाई पूरी नहीं हो रही, तब उसको पेन हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? और अगर उसको रेस्ट पे बिना सप्लाई इंक्रीज किए भी उसे पेन हो रहा है, दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना इज मोर डेंजरस देन स्टेबल एंजाइना। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इज मायोकार्डियल इंफाक्शन। इंफाक्शन के बाद नेक्रोसिस जैसी होगा तो हार्ट फेलियर में जाएगा पेशेंट, एरिथमियाज and then sudden cardiac death. Okay. Arteries which are involved in the ischemic heart disease. Most common artery which is involved is, मैंने जैसे बताया था, left anterior descending या anterior interventricular artery. ये 40 to 50% cases में this is involved in the angina or ischemic heart disease. Next common artery which is involved is right coronary artery, and third is circumflex artery. Left circumflex artery is the third most common artery which is involved in ischemic heart disease. Angina pectoris मैंने बता दिया आप लोगों को ऑलरेडी, स्टेबल एंजाइना बता दिया, अनस्टेबल एंजाइना भी बता दिया। ओके। एंजाइना जो होगा, एक चीज जो आप लोगों को यहाँ पे 15 सेकंड से 15 मिनट्स तक अगर पेन लास्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये नेक्रोसिस इंड्यूस नहीं करेगा, इस्चीमिया इंड्यूस नहीं करेगा। 15 पेन जो है, पेशेंट कंप्लेंट जो है 15 सेकंड से 15 मिनट्स तक का जो पेन होगा वो पेशेंट को इस्चीमिया में नहीं लेके जाएगा। 30 मिनट्स तक सस्टेन कर रहा है जो पेन, वो इन्फॉक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है। पेन, पेशेंट बोलता है मेरे को पेन हुआ और 2-3 मिनट बाद ठीक हो गया, दैट मीन्स सिर्फ उसे एंजाइना हो रहा है। अगर ये पेन 30 मिनट्स तक सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स वो पेशेंट इन्फॉक्शन की तरफ जा रहा है।
Is it clear? Myocardial infarction के symptoms I have told you. Cardiac arrest. Cardiac arrest का मतलब वर्क ही नहीं कर रहा हार्ट, एकदम से सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द बॉडी, यानी पंपिंग एक्शन हार्ट का गया, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है. अगर इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, साइंस क्या होंगे कार्डियक अरेस्ट के? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सीवियर चेस्ट पेन. इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले ईसीजी करोगे आप पेशेंट की, ठीक है ना. ईसीजी पढ़ी है आप लोगों ने? ईसीजी PQRS T वेव पढ़े ना. तो ST सेगमेंट जो होता है उसका एलिवेशन क्लियर कट इंडिकेशन होता है MI का. ST सेगमेंट एलिवेशन जो होता है वो क्लियर कट इंडिकेटर होता है MI का. उसके अलावा हम इकोकार्डियोग्राफी, दैट इज सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट, इकोकार्डियोग्राफी वो करते हैं. उसके अलावा डॉपलर करते हैं हार्ट का. PQRS वेव समझ में आता है ना सबको? ये इको, दिस here you can see echocardiography of the heart. इसका नाम में दिख रहा है ना, ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट, ये अब ये हम क्या करें यहाँ पर? कैथेटर एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी का मतलब, एंजियो मतलब आर्टरी, प्लास्टी का मतलब रिपेयर. तो हम आर्टरी को रिपेयर कर रहे हैं. कैसे रिपेयर कर रहे हैं? कि हम कैथेटर लेके जाते हैं. कहाँ से एंटर करोगे? आर्टरी के अंदर कहीं भी एंटर करना इज वेरी डिफिकल्ट. क्यों? डीप सीटेड, यस. तो हमें एक ऐसी आर्टरी ढूंढनी पड़ती है जो सुपरफिशियल हो, मतलब ऊपर ही मिल जाए हमें, असेस इसका इजी असेस हो, पहली बात. दूसरी बात, आर्टरी में प्रेशर कितना हाई होता है, ठीक है ना. तो हमें एक ऐसी आर्टरी ढूंढनी पड़ती है जो असेसिबल हो और उसका प्रेशर कम हो. यानी हम जितनी दूर जाएंगे हार्ट से प्रेशर उतना कम होता जाएगा. यानी फिमोरल आर्टरी सुपरफिशियल होती है, इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे मिल जाती है हमें, ठीक है, और वो हार्ट से काफी दूर आ जाते हैं हम उसमें. तो हम फिमोरल आर्टरी इज मोस्ट कॉमन आर्टरी जिसके थ्रू हम ग्राफ्ट लेके, ये एंजियोप्लास्टी के लिए जाते हैं, ठीक है. क्या पैसेज होगा? फिमोरल आर्टरी कहाँ जाएगी अंदर? फिमोरल आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ओके. एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कहाँ जाओगे? कॉमन इलियक आर्टरी. और ऊपर जाओ, वेना केवा में कैसे आएगा? आर्टरी में थे हम तो, एओर्टा में आ गए बच्चे. ये गलती होती है आप लोग की एग्जाम में भी, पीछे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना. एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, उसके बाद एओर्टा में आ गए हम लोग. एओर्टा से घूमते घूमते कहाँ आएंगे? कहाँ आना है हमें? कोरोनरी आर्टरी में आना है बेटा. एओर्टा से घूमते हुए हम, समझ आ गया, असेंडिंग एओर्टा में आएंगे. वहां साइनस में हमें दोनों आर्टरीज की ओपनिंग दिखाई देंगी, वहां से हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर एंटर कर जाएंगे, ओके. जहां जिस साइड पे हमें जाना है वहां पे जाके हम डाई को इंजेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी फिल्म्स ले लेंगे. और जो फिल्म्स लेंगे उसके अंदर हमारे पास जहां जहां ब्लॉक होगा उसकी फिल्म्स में आ जाएगा, क्योंकि डाई डाली है ना आपने, वो डाई रेडियो ओपेक होती है, ओके. तो जहां जहां डाई नहीं है इसका मतलब वहां वहां ब्लॉकेज है, ठीक है. उस ब्लॉकेज को वर्कआउट करेंगे और वहां पर हम स्टेंटिंग कर देंगे साथ ही साथ. स्टेंट, स्टेंट समझते हो? समझते हो ना स्टेंट? कितनी क्लास समझती है स्टेंट? वैसे पीछे वाले तो गायब ही हैं सब. स्टेंट होता है कि छतरी देखिए ना, छतरी खोलते हो घर में, अम्ब्रेला, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट ओनली. ये देखो हम लोग ना ये कैथेटर लेके गए, ये एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी जिसमें प्लाग लगा हुआ है, ये हमें अपनी छतरी लेके गए, समझे आ गया? ये लेके गए, ठीक है. अंदर जाके हमने क्या किया, इसके अंदर जो बैलून था उसको फुला दिया. जैसे हमने ये बैलून को फुलाया, ये बैलून फूल गया, हमारा स्टेंट एक्सपैंड हो गया हमारा ये, ठीक है. अब हमने क्या किया, ये स्टेंट को कंप्रेस किया, मतलब और बैलून को, इतना नहीं कि आर्टरी फट जाए, सिर्फ इतना ही प्रेशर देना है कि आर्टरी जो है वो ये प्लेग पूरा खुल गया. और यहाँ पे फिर ये स्टेंट जो था वो छोड़ दिया. स्टेंट बेसिकली पाइपलाइन बना के हमने छोड़ दी है. अब इस
इसके थ्रू ब्लड जो है इधर उधर पास होता रहेगा। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक तो वही रहा, बट हमने पैसेज क्रिएट कर दिया। अब जब आर्टरी में से ब्लड जाएगा तो इस पाइपलाइन के थ्रू ब्लड इधर उधर हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा रास्ता। ठीक है, ये पहले मेटलिक का डालते थे, अब ये प्लास्टिक का डालने लग गए। ओके, जो स्टेंट की कॉस्ट देखते हो ना मार्केट में, वो इसी बात पे डिपेंड करती है। पहले स्टील का होता था वो, अब प्लास्टिक का हो गया। ठीक है, एंजियोप्लास्टी समझ में आ गई सबको, कैथेटर डाल के। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट करता है ये। इसका आपसे पूछते जो है ना, वो पूछते लेके कैसे जाते हो, और तुम लोग सब इंफीरियर वेना केवा में लैंड कर जाते हो, तो फिर कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचोगे कैसे, ये नहीं सोचते। कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचना है तो मैं आर्टरी में ही रहना पड़ेगा। ओके, बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होती है, यानी हमने वो जो सेगमेंट ब्लॉक था, हमने उसके ऊपर और उसके दूर जाके बाईपास बना दिया। बाईपास समझते हो ना, बाईपास बना दिया। उसके लिए जो हम, ऑब्वियस है, उसके लिए हमें वेसल्स चाहिए, तो दूसरे की तो लगा नहीं सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते वैसे हम दूसरों की? यस, टिश्यू रिजेक्शन, टिश्यू ऑटो इम्यून, बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना, वो दूसरे का टिश्यू कैसे ग्रैस्प कर लेगी बॉडी। ठीक है, और इतने से प्रोसीजर के लिए हम उसे लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते रहे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी में से ही उसकी वेन लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइड कौन सी वेन निकाली जाती है इसके लिए? ग्रेट सैफनस वेन, ग्रेट सैफनस वेन। अच्छा, वेन के अंदर तो वैल्व्स होते हैं, उसको यहाँ कैसे लगाएंगे हम? वेन के अंदर वैल्व्स होते हैं ना, तो वो आर्टरी की जगह कैसे यूज हो सकती है? उल्टा कर देते हैं उसको, अपसाइड डाउन। उसका जो बाहर का सरफेस होता है वो अंदर, और अंदर का सरफेस होता है वो बाहर। ठीक है, ये ट्रैप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हम वेन को आर्टरी की जगह क्यों कैसे फिट कर देते हैं। ठीक है, और ये कौन करता है बाईपास सर्जरी? कार्डियोथोरैसिक सर्जन। ओके, वो कार्डियोलॉजिस्ट कर रहा था प्लास्टी, और ये कार्डियोथोरैसिक सर्जन कर रहा है। ये दोनों में फर्क है, ये सर्जन कर रहा है और वो कार्डियोलॉजिस्ट कर रहा है। नाउ कॉमन आर्टरीज जो यूज होती हैं, यस, और कोई आर्टरी भी तो बताओ, ये तो बहुत पुरानी हो गई ग्रेट सैफनस, अब तो और आ गई बहुत सारी। एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, रेडियल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, रेडियल आर्टरी। ओके, ये भी यूज की जाती है। नाउ वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, ऑब्वियसली जब हार्ट को आर्टीरियल सप्लाई जा रही है तो वीनस ड्रेनेज भी तो होगी ना हार्ट की। ठीक है, तो वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, drained by three main veins: coronary sinus, anterior cardiac veins and vena cordis minimi। 60% वीनस ब्लड जो है वो कोरोनरी साइनस में जाता है, और 40% डिफरेंट चेम्बर्स में डायरेक्टली वीना कॉर्डस मिनिमी के थ्रू डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है, अलग अलग चेम्बर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस का अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये दिख रहा है हमें कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस की, ये जो है ये तो राइट एंड है, ये इधर दिख रहा है, ये लेफ्ट एंड है, दिखाई दे रहा है। लेफ्ट एंड पे ग्रेट कार्डियक वेन है, और ये राइट एंड पे स्मॉल कार्डियक वेन है। ग्रेट, स्मॉल, समझ में आ गई? स्मॉल कार्डियक वेन क्यों है इस तरफ? क्योंकि हमने अगर ध्यान दो तो आपने पढ़ा था राइट कोरोनरी आर्टरी स्मॉल, तो इसलिए स्मॉल कार्डियक वेन है। सी, दिस इज जस्ट मैं आप लोगों को लर्न करने के लिए टिप्स दे रही हूँ ये सब। ठीक है ना, समझ में आएगी मेरी बात? तो राइट की तरफ जो है वो स्मॉल कार्डियक वेन है, और जो लेफ्ट की तरफ है वो ग्रेट कार्डियक वेन है। और जब ग्रेट हो गया स्मॉल हो गया तो एक बीच में भी है, दैट इज मिडिल कार्डियक वेन। ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी है, ग्रेट कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, और किस किस एंड में है दोनों, और मिडिल कार्डियक वेन ऑब्वियस है मिडिल में है तो वो मिड बिंद पे है। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, कोरोनरी साइनस 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सेंटर में कोरोनरी साइनस, दिस इज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में पड़ा हुआ है पीछे।
development. It is begins as continuation of the great cardiac vein. Coronary sinus opens into right atrium. Right atrium के अंदर जो openings पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग. This is the coronary sinus. ये दिख रहा है. ये ग्रेट कार्डियक वेन, ये स्मॉल कार्डियक वेन और ये मिडिल कार्डियक वेन. ठीक है. ट्रिब्यूटरीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यही ट्रिब्यूटरीज हैं. मिडिल कार्डियक वेन आपके एग्जाम में आई हुई है, नीट पीजी में अभी लेटेस्ट में ही आई हुई है कि मिडिल कार्डियक वेन जो है ये रन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करती है. मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है ना. इट रन्स इन दी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. ये बाकी के नाम वेन्स के आप याद रखो तो जितना अच्छा है उतनी. posterior vein of left ventricle, oblique vein of left atrium, right marginal vein, left marginal vein. Okay. Anterior cardiac veins, these are small veins which directly infundibulum, they open directly into the right atrium. ये तो anterior cardiac veins हो गई जो डायरेक्टली चेम्बर में ओपन होती हैं, हर चेम्बर में होती हैं. उनको क्या बोलते हैं हम? Anybody? Sebacean veins. Sebacean veins, they open directly into the chambers. चारों चेम्बर है हार्ट के, उसमें डायरेक्टली ड्रेन करती हैं वो. Sebacean veins बोलते हैं उन्हें. ओके, थैंक यू.